Hello, hello, my dear students. Namaste. Welcome back in online English teaching class. Today on 22nd April. My dear students, yesterday I told you about the author of the lesson A Girl with a Basket, named as William C. Douglas. Today, before reading the lesson A Girl with a Basket, it is necessary to know the summary of the lesson. Do you know why summary is necessary? My dear students, previous knowledge helps to gain much more. हिंदी में यदि आपको किसी चीज़ का पहले से कुछ पूर्व ज्ञान है तो आप जब उससे संबंधित अन्य अध्ययन करते हैं तो आपका पूर्व ज्ञान, आपका प्रीवियस नॉलेज आपके अचीवमेंट में काफ़ी सहायक होता है, हेल्प करता है, मदद करता है। इसलिए बिफोर रीडिंग द लेसन ए गर्ल विद ए बास्केट, it is necessary, it is important to know about lesson. बच्चों, मैं इस पाठ का हिंदी में सारांश आपके वर्चुअल क्लास पर भेज चुका हूँ, किंतु यहाँ पर आप ऑडियो और विजुअल के माध्यम से इस पाठ के सारांश को, समरी को समझेंगे, सुनेंगे। अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ साइकोलॉजिस्ट्स, we gain 17% through our ears and 83% from our eyes. So this video is very important. So let us come on the chapter about the lesson. The first lesson of your section A from prose section is A Girl with a Basket. A famous American judge, William C. Douglas, has written this lesson. Let us come and know about the lesson. My dear students, the author means Mr. William C. Douglas visited India in 1950. This was the time when the partition between India and Pakistan was decreed. Millions of people were coming from Pakistan to India. They have lost their homes, their shelter, their livelihood. In the lack of livelihood, home, shelter, medicines, money, they were called refugee. In Hindi, शरणार्थी. In 1950, when the writer came India, he was traveling by train. The writer was going to Bareilly from New Delhi by train. He got down at one station. A group of refugee children
gathered around him. शरणार्थी बच्चों के एक समूह ने, झुंड ने, जब लेखक एक जगह प्लेटफार्म पर उतरा, एक स्टेशन पर, तो उसको घेर लिया। Because in their opinion the writer was suited booted, looked rich person, क्योंकि उनकी नज़र में लेखक सूट बूट में और धनी दिखाई दिया। So refugee children gathered him, इसलिए शरणार्थी बच्चों ने उसे घेर लिया। They wanted to sell their fans and baskets. ये बच्चे, रिफ्यूजी बच्चे, अपने पंखों को और टोकरियों को बेचना चाहते थे। These fans and baskets were hand-woven articles. ये पंखे और टोकरियां हाथ की बनी हुई वस्तुएं थी। The author bought some fans and baskets. लेखक ने कुछ पंखों को, देहात भाषा में बेनों को खरीदा और कुछ टोकरियों को भी लिया। बट ए ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ 9 years pressed him hard. एक 9 साल की खूबसूरत बच्ची उस पर मजबूती से दबाव डाल रही थी टू बाई हर बास्केट, कि वह उसकी डलिया ले ले, टोकरी ले ले। शी वॉज एन अर्नेस्ट प्लीडर, देयर वर टीयर्स इन हर आईज, उसकी आंखों में आंसू था। वाई शी वॉज वीपिंग, वो क्यों रो रही थी? डू यू इमेजिन, क्या आप कल्पना कर सकते हैं? बुभुक्षितम ने प्रतिभात किंचित, पंचतंत्र में कहा गया है भूखे को कुछ अच्छा नहीं लगता। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास वर्णन किए हैं। लक्ष्मण जी ने राम से पूछा कि हे भैया, ये बताइए, बड़ दुख कवन, कवन सुख भारी, सोई संक्षेप कहो बिचारी। इस संसार में सबसे बड़ा दुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, हमको आप संक्षेप में बताइए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने एक चौपाई के माध्यम से ही सारा सार कह दिया। उन्होंने कहा, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग राही। मीन्स पॉवर्टी इज ए कर्स इटसेल्फ, गरीबी अपने आप में एक अभिशाप है। दिस गर्ल ऑफ 9 years was a refugee girl. They have lost their all things in Pakistan. In India, they haven't anything. They were called refugee. They were dying and suffering in the lackness of home, shelter, water, medicine, clothes, etc. So, due to so poor, unable to come, unable to earn some money, some anas for her livelihood, there were tears in her eyes. इसलिए उस छोटी बच्ची के आंखों में आंसू आ गए, अश्क आ गए। इसलिए आए, गरीबी के नाते आए। So many pity on her condition. The author put 15 cents into her baskets.
उसके ऊपर बहुत दया दर्शाते हुए लेखक ने उसकी टोकरी में 15 आने डाल दिए। 15 आने डाल दिए, टोकरी भी नहीं खरीदा। मतलब द राइटर डोनेटेड 15 सेंट्स, 15 आनेज, अनाज। लेखक ने 15 आने का दान किया। आए सुनाए ही पुट द मनी, जैसे ही उसने धन को अर्थात अनाज को, पैसों को उसकी टोकरी में डाला। आए सुनाए ही पुट द मनी, ही रेज्ड हर चिन, उसने अपनी ठुड्डी उठाई, अपना चेहरा ऊंचा किया। एंड विथ ऑल द प्राइड, और पूरे स्वाभिमान के साथ, गर्व के साथ, एंड ग्रेसियसनेस ऑफ लेडी, और एक महिला में जो भव्यता होती है, शीलता होती है, उसके साथ रिटर्न हिम हिज मनी, उसको उसका धन वापस कर दिया। मीन्स when the author William C. Douglas gave her 15 annas without buying her basket, that girl of 9, that refugee girl of 9 years, who was suffering, who was on the edge of starvation, about to die, but refused to take his money as charity, as donation. क्या स्वाभिमान था उस छोटी सी बच्ची में कि उसने उपहार स्वरूप, दान स्वरूप दिए गए धन को लेने से इनकार कर दिया, और क्या किया,